capital in 90 days. So जो भी नए ट्रेडर स्टार्ट करते हैं, अच्छे ड्रीम्स लेके आते हैं मार्केट में, और वो 3 महीने के अंदर ही अपना 90% कैपिटल लूज करके मार्केट से बाहर जाते हैं। और 90% ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यही बताती है कि बहुत फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाने की कोशिश करती है, but both fundamental and technical analysis method designed backward means both fundamental and technical analysis makes you buy at expensive and sell at cheap, and which is not logically correct. ये logically correct नहीं है। हम हमारे लाइफ में भी कभी भी कोई भी चीज की प्राइस बढ़ गई तो हम सेल करेंगे, और कोई भी प्राइस गिर गई तो हमको बाय करना पसंद आएगा। लेकिन बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट वही बताती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यही पढ़ाते हैं कि अप ट्रेंड में बाय करो या डाउन ट्रेंड में सेल करो। तो इसलिए 90% लोग वहां पे ट्रेनिंग लेने के बाद, क्लासेस लेने के बाद भी लॉसेस में जाते हैं। उसका रीजन यही है कि बहुत फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस डिजाइन बैकवर्ड, और इसके लिए हमको ये प्राइस एक्शन मेथड बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपको पढ़ाया जाता है, और टेक्निकल एनालिसिस में क्लियरली बताया जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, and in Dow theory itself it states that trend is your friend. So buy in uptrend and sell in downtrend. So बहुत सारे patterns रहते हैं, flag pattern, inverted head and shoulder patterns, n number of patterns gives us buy in uptrend and sell in downtrend. And in fundamental analysis we go in depth that company analysis. कोई भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है तो बाय करो, और फंडामेंटल वीक रहेगा तो सेल करो। Still everybody knows this, still over 90% of traders still lose money despite using the above analysis. Why? Because again, both fundamental and technical analysis method design up backwards. So that's why I really interested to show you the strategy, and here why everyone is buying stock in uptrend because of greed. Technical analysis tells us buy in uptrend. On fundamental strong company, we are interested to buy, and even greed also gives a signal to buy in uptrend. So we are not going to use this method. Buy in uptrend. Most of the traders or most of the investors trying to buy in uptrend and sell in downtrend. Because of downtrend, company is fundamentally weak, and technically downtrend means company is weak, and also fear also helps you to sell at a low price. So let's see what happened. As I explained previous slide, that in uptrend we interested to buy, fundamental strong company we interested to buy, and greed also gives a signal to buy, but somebody is there in market who is very much interested to sell at expensive. और समझ लेना कि मैं स्टॉक लेने के बाद ही क्यों गिरता है, उसका रीजन यही है। तो कोई तो मार्केट में है, उसको पता है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर तो यहाँ से बेचना है, लेकिन आप क्या करते हो, आपको फंडा टेक्निकल एनालिसिस बता देता है कि अप ट्रेंड में बाय करो एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बाय करो, एंड ग्रीड भी आपको बताती है कि बाय करो, प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी। हमको डाउ थ्योरी यही बताते हैं, बहुत सारे लोग यही बताते हैं। जब मार्केट 7,000 में आया था कोविड में, कोई किसी ने नहीं बाय किया। जब 20,000 पे गया, 18,000, 20,000, सब ने एंट्री किया, बाद में सबके पोर्टफोलियो रेट। इसके लिए समझना है कि आपको ग्रीड में या अप ट्रेंड या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में आपको बाय करने से अच्छा क्या है, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और एक्सपर्ट लोग मार्केट में यही करते हैं, एक्सपेंसिव सेल करते हैं। सेम थिंग हैपन इन डाउन ट्रेंड बिकॉज ऑफ द डाउन ट्रेंड traders are more interested to sell, and fundamental big company they also interested to sell, and fear also forced you to sell at a low price. But you know that in our daily life we always interested to say buy at a cheap. If somebody knows that there is a support zone and previously bounced from here, so they are interested to buy at cheap. So our strategy tells exactly opposite of the fundamental and technical analysis. That's why definitely you will earn money with help of this strategy, because only 10% traders earn money in the stock market, and definitely this strategy will 90% useful to you to make money. So why demand and supply? So if you are interested in learning a powerful trading approach that can help you
to identify potential reversal, trend reversal, and profitable trading opportunities. So this course, I designed this course to provide you understanding of demand and supply trading methodology. And stock market works on demand and supply only. स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही काम करता है, और हमको यही समझना है कि कहाँ से डिमांड आएगी और कहाँ से सप्लाई आएगा, और आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो आपको ये डिमांड एंड सप्लाई सीखने के बाद आपको जरूर, आप लर्निंग के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई जोन, different time frames. So time frame is not important here. Time frame is daily, weekly, hourly, 15 minutes, 5 minutes, based on your experience. You can use any time frame. Even when I come to live trading with my students, I use a 5 minutes time frame. So it's depend on your experience. So we will provide real world example and case studies. So I will show you what are the real data. I showed Future Academy, my friends, that I showed real data. This is not bookish knowledge, and nothing is there. I will show the real case studies, real examples. Clear my Telegram channels where you will see all the study and given calls with examples and live data. So you will gain valuable insight how to identify potential trading opportunities using this approach, and definitely you will be the 90% profitable from after completion of this course. So definitely everyone should understand how demand and supply works. So what happened? Why we need to buy at demand zone? Because I already told you, in demand zone, professional has to buy orders waiting here. They never hurry. वो कभी का ये नहीं करते कि यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे. वो उनको पता रहता है कि मार्केट उनका, जो भी ऑपरेटर्स है मार्केट में, वो ऑलवेज प्रिपेयर टू बाय एट डिमांड जोन. वो वेट करते हैं, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे ही पेंडिंग होती है, और प्राइस जरूर प्राइस फिलिंग के लिए नीचे आती ही है. लेकिन जब प्राइस ऊपर 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 जाना चालू रहता है, तो मार्केट में जो नोविश है, तो नोविश को लगता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड है, तो डेफिनेटली greed forced him to buy at a high price. And when price comes down, after his buying, novice closes his position in frustration that price has fallen. And who is buying here? Professional. So we need to professional notes buying from the demand zone and professional buying orders waiting at demand zone. Professional never hurry to buy in between. They always wait for at the demand zone. That's why you need to understand the importance of the demand zone. Demand zone, always professional buys. Means even there is a downtrend, professional will buy here. And I will show a lot of examples where I given personally buy calls to my students. So novice sees price increasing, so buy at high. So see the difference between professional, and definitely you will be the professional trader after completion of this course. So novice see price increasing, so buy at high. Novice क्या करता है? प्राइस बढ़ रहा है, बाय करता है, और जैसे नीचे नीचे आ जाएगा वो डरता है और फ्रस्ट्रेशन में सेल करता है. इसलिए मार्केट में नोविश या नया आदमी कभी भी पैसा कमाता नहीं. पैसा कौन कमाता है? प्रोफेशनल्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डिमांड जोन वर्क्स. समझ गए आपको? सो लेट्स सी हाउ सप्लाई जोन वर्क्स. सो सप्लाई जोन वर्क्स वेयर डिमांड इज exhausted and supply is more, means seller is more. Then what happened? Professional has a sell orders waiting here. They know that price is moved far away from the demand zone, and they find out a previous resistance point, and they are selling orders waiting here. So who is buying here? I already told, novice buys here from professionals, and novice sees price is falling, sells here, and who is buying here? Professional. Professional are interested buy here, and professional interested at sell here. So what you see? Professional buys at downtrend and novice sell in downtrend. Professional buy in uptrend, professional sell in uptrend, and novice buy in uptrend. So that strategy tells opposite than fundamental and technical analysis. That's why this is a totally different method, and where this will around 90% accuracy on your daily trading.
So as per Wikipedia, there is a 42 types of patterns and different patterns. You will see many classes teaching these patterns. Especially, I don't want to take their names, but they teach you how to work these patterns. So to learn 42 types of patterns and remember, it's very difficult. तो इतना 42 टाइप्स ऑफ पैटर्न ध्यान में रखना और इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम अभी ये जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई है, इसमें खाली 4 पैटर्न के ऊपर ही फोकस करने वाले। तो प्राइस ऊपर क्यों जाती है? व्हेन डिमांड एक्सीड देन सप्लाई, प्राइस विल मूव अप। प्राइस नीचे क्यों आती है? कि सप्लाई एक्सीड दैट डिमांड, प्राइस विल मूव लो। तो डिमांड एंड सप्लाई का मेथड इसके ऊपर ही डिपेंड है। हर एक को पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं। डिमांड बढ़ी, प्राइस ऊपर गई, सप्लाई बढ़ी, प्राइस नीचे गई। So this strategy is very useful for equity trading. I will give some scanners where you will get a equity trading, how the automatically you will get the stocks to trade for tomorrow. You just draw the demand and supply zone. I will teach you in this course how to draw demand and supply zone, and next day you just check whether the stock open at demand zone, you need to buy. Stock open at supply zone, you need to sell. It's a very simple method, no need of any indicators. People are selling indicators, people are using 8 to 10 indicator, 15 indicator, but this strategy, nothing, not a single indicator is required to use this strategy. Then equity future, you can also trade in equity future and options, but I recommend more and more on this Nifty and Bank Nifty. So my Nifty accuracy is 80 to 90%. I never touch Bank Nifty, but Nifty, I have a command. And crude oil, natural gas, I will give the 90% accuracy on crude oil and natural gas based on this strategy. But you can use this strategy on any platform. You can use on currency, commodity, index future, equity future, in all platform you can use. But mostly crude oil, this strategy gives excellent returns, and Nifty and natural gas, I will show the results of this October month. So everybody knows the candle. Green candle means buying and red candle matlab selling. This is the demand and this is the supply. So green candle बनती है, क्यों बनती है? डिमांड बढ़ गई। रेड कैंडल क्यों बनती है? सप्लाई बढ़ गया। आज हम अलग कलर के कैंडल सीखेंगे, वो कैंडल है ब्लू कैंडल, और ब्लू कैंडल को ही हम बोरिंग कैंडल बोलते हैं। तो बोरिंग कैंडल मतलब क्या है? तो बोरिंग कैंडल क्या होती है कि सम कैंडल डिनोट सेलिंग। व्हिच कैंडल डिनोट सेलिंग? रेड कैंडल। और सम कैंडल शोज बाइंग। व्हिच कैंडल शोज बाइंग? ग्रीन कैंडल शोज बाइंग। बट some candles are not showing anything. Those candles are boring candle. So what happened at boring candle? They show the transactions are happening in the range and thus demand and supply is in balance. तो boring candle पे क्या होता है? Boring candle पे यही होता है कि डिमांड एंड सप्लाई इनबैलेंस होता है। मतलब आपका जो प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है वो रुकता है, नीचे जा रहा है तो रुकता है, और वहां से orders are potentially being accumulated or distributed by big boys, means operators. स्टॉक मार्केट कौन चलाता है? आपको पता है, ऑपरेटर ही चलाता है। हाँ, निफ्टी 3 दिन में 600 पॉइंट नीचे आता है और एक दिन में 200 पॉइंट आता है, ऊपर जाता है, और एफआईडीए का डेटा कुछ भी नहीं दिखाता। तो इसके लिए आपको समझना है कि ऑपरेटर की चाल क्या होती है। ये ऑपरेटर की चाल दिखाने के लिए हमको यूजफुल होती है बोरिंग कैंडल। सो बोरिंग कैंडल में क्या होते हैं कि बिग बॉयज पोटेंशियली एक्यूमुलेट किया, इसका मतलब हमको बोरिंग कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आ गई, इसका मतलब ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग किया। और ग्रीन बोरिंग कैंडल ब्लू कैंडल के बाद आपको रेड कैंडल आ गई, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग किया। सो बोरिंग कैंडल आपको बहुत कुछ बताती है कि ऑपरेटर के मन में क्या चल रहा है, और जिसको ऑपरेटर के मन की चाल समझ गई तो आप भी ऑपरेटर बन गए स्टॉक मार्केट के, और वही हमको करना है। सो बोरिंग कैंडल का हम कलर चेंज करेंगे ब्लू, एंड देन एक्साइटिंग कैंडल, दे इंप्लाई इंपॉर्टेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एंड दस प्राइस स्टार्ट्स मूविंग इधर अप और डाउन। बोरिंग के बाद ग्रीन कैंडल आ गई, प्राइस ऊपर जाएगी। बोरिंग के बाद रेड कैंडल आ गई तो प्राइस नीचे जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई किसके ऊपर है? बोरिंग कैंडल और ग्रीन और रेड कैंडल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम सीखने वाले कि वैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स। सो लेट्स सी द फॉर्मेशन विथ यूज ऑफ द बोरिंग कैंडल। सो
how to identify the boring candle? Let's see. To qualify the candle as a boring or exciting, we compare the candle's body range open to close. So open to close, this is the open and close, and this is a low and high. So this is a 100% candle. And when body of this candle is more than 50%, then this is a boring candle. See this candle. This candle is almost 60%. So this candle is exciting candle. Exciting candle. And boring candle, this is a 100% candle. And when body is below 50%, I see this body is around 30%. So this will be a boring candle. So identifying a boring and exciting, just difference I told that if body is more than 50%, then it's exciting candle, and body is less than 50%, then boring candle. Understood? समझ गया आपको बोरिंग और एक्साइटिंग का डिफरेंस? यस और नो? तो बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोरिंग ब्लू क्या है और ये ग्रीन और रेड क्या है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग मी ये बोरिंग क्या है, एक्साइटिंग क्या है. तो बोरिंग कैसे बनती है समझ गए आपको? मैसेज बॉक्स में करो यस और नो. यस. सो बोरिंग और यस सर. ओके ग्रेट. सो बोरिंग और एक्साइटिंग आपको समझ में आ गया. तो हमको क्या बनना है, ये बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल के मिला के हमको फॉर्मेशन बनाना है डिमांड एंड सप्लाई जोन का. जैसे आप ये देखो, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं दिया, तो आपको पहचानने के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज आता है. जैसे ये कैंडल 100% कैंडल है, इसके लिए ये कैंडल है एक्साइटिंग. जैसे ये कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल क्या है, बोरिंग कैंडल है. क्यों? ये टोटल कैंडल कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक, लेकिन बॉडी कितनी है, खाली 20% ही है. इसके लिए ये कैंडल कौन सी है, बोरिंग है. ये टोटल फुल कैंडल है, दैट्स व्हाई इट्स एक्साइटिंग कैंडल. ये कैंडल भी देखेंगे तो बॉडी 70% से ज्यादा है, इसके लिए हम एक्साइटिंग बोलेंगे. छोटी भी रहेगी लेकिन एक्साइटिंग कैंडल है. सो बोरिंग और एक्साइटिंग का कैंडल का हमने डिफरेंस समझने के बाद, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि ये पहचानना ये ग्रीन है क्या रेड है, तो हमको समझ में आएगा, लेकिन बोरिंग समझने के लिए डिफिकल्टी आता है. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम रीडिंग व्यू पे हमारा एक प्रोग्राम आता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैंडल क्या होती है, ब्लू कैंडल होती है. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बोरिंग कैंडल कैसा ऐड करना है, हम डिटेल कोर्स में सीखेंगे आगे जाके. लेकिन ये बोरिंग कैंडल आपको जैसे यहाँ पे बोरिंग को क्लिक किया तो हाइड किया तो यहाँ पर दिखेगा ओनली आपको ग्रीन और रेड कैंडल दिखेगी, सप्लाई डिमांड. लेकिन बोरिंग कैंडल पे क्या होता है, प्राइस इनबैलेंस होता है. तो यहाँ पे हमने 4-5 ट्रेड दिए थे, बोरिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन यहाँ पे बोरिंग कैंडल क्या करती है, प्राइस इनबैलेंस करती है. जैसे नीचे सेलिंग हो रहा था, यहाँ पे प्राइस इनबैलेंस हो गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये सपोर्ट बन गया. ये सपोर्ट लास्ट 3 दिन से वैसा का वैसा रह गया. तो ये आगे मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ. तो बोरिंग और एक्साइटिंग आपको, आई होप आपको समझ गया. अभी हम क्या करते हैं, बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल को लेके एक हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. जैसे डिमांड जोन में हम समझेंगे कि डिमांड जोन में एक्चुअली क्या होता है, टीबीआर मतलब ड्रॉप, मार्केट नीचे 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 आ रहा है. लेकिन आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था, ब्लू कैंडल मीन्स प्राइस इन बैलेंस. ओरिजिन ऑफ इन बैलेंस मीन्स ऑपरेटर्स, big boys in balance price, they will do the accumulation or distribution. So if they are doing the accumulation, then after boring candle, if there is a green candle, means operators action was the buying side, they was doing accumulation here. उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, इसके लिए ग्रीन कैंडल आया. हमको इमीडिएटली ये फॉर्मेशन जैसे ही पता चला कि ड्रॉप बेस रैली फॉर्मेशन हो गया, तो हमको भी बाइंग साइड ही जाना है. फ्राइडे को हमको निफ्टी में यही फॉर्मेशन मिला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी, वहां से हमने कॉल ऑप्शन बाइंग किया और दूसरे दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया. तो ड्रॉप बेस रैली फॉर्मेशन. तो हमने क्या किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, प्राइस इनबैलेंस हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ही सिग्नल पकड़ा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, और हमने ये कैंडल जैसी क्लोज हो गई, हमने बाइंग किया. ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है. और हमारा एसएल किधर रहेगा, इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, इधर हमारा एसएल रहेगा. सो फर्स्ट फॉर्मेशन इन डिमांड जोन इज ड्रॉप बेस रैली. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ड्रॉप बेस रैली, एंड दिस इज द एक्साइटिंग कैंडल. दिस इज द एक्साइटिंग कैंडल.
This is exciting candle and these two are boring candle. These are the boring candle. ये boring candle. तो हमारा ड्रॉप बेस रैली फॉर्मेशन मिला। और कभी कभी क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर आपको ब्लू कैंडल दिखेगा, ओरिजिन ऑफ द इनबैलेंस। आपको यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक तो एक्यूमुलेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हमको ब्लू कैंडल दिखेगी, हमको यहाँ पे एंट्री करना नहीं है। जैसे आपकी ग्रीन कैंडल आ गई तो हमको समझना है रैली बेस रैली फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। हमको क्या करना है, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी हमको करना है बाइंग साइड जाना है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी हमको यहाँ बाइंग साइड जाना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, ड्रॉप बेस रैली। हमारा जैसे ही कैंडल क्लोज हो गया हम बाइंग साइड गए, रैली बेस रैली। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया हम बाइंग साइड गए। सो आउट ऑफ 4 फॉर्मेशन I explain 2 formation, drop base rally, rally base rally. In second formation, rally base drop means market ऊपर 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 जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि डाउन ट्रेंड में बाय करना, और रिजल्ट मैंने क्या दिखाया, रिजल्ट मैंने दिखाया परसों का ही आपको, परसों ही मैंने जोन डाला था। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने ग्रुप में सब जगह शेयर किए। तो आपको ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं कि ये बुकिश नॉलेज है। बुकिश नॉलेज देने वाले बहुत मार्केट में मिलेंगे। जैसे ये मेरा क्या है, प्रीमियम ग्रुप है, तो यहाँ पे मेरा सब कुछ एनालिसिस वगैरह मैंने शेयर किया रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेफिनेटली मैंने मार्केट क्लोज होने के पहले ही वो जोन एनालिसिस करके रखा था। तो मोस्ट ऑफ द दिन ऐसा नहीं कि वो स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ तो उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्ट्रैटेजी के ऊपर हम डे इन डे नाइट काम करते हैं वही स्ट्रैटेजी आपको दिखाई है। तो जैसे फ्राइडे को हमको मिला जोन, इमीडिएटली हमने वहां पे बाइंग स्टार्ट की। तो जो भी हमारा यहाँ पे है डिमांड एंड सप्लाई जोन, उसके ऊपर ही हम अपना डेली का ट्रेडिंग करते हैं। और डेली का मैंने एक्यूरेसी भी आपके साथ आगे मैं एग्जांपल में शेयर करूंगा। लेकिन वहां पे निफ्टी में जैसे ही ये ड्रॉप हो गया, इधर ब्लू कैंडल अप हो गई, ऑपरेटर का इनबैलेंस हो गया, और वहां से ही ग्रीन कैंडल आ गई, इधर से ही कॉल ऑप्शन होल्डिंग किया। सेम बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी देखा रहेगा ड्रॉप बेस रैली। इधर ये आपको बाइंग एक्यूमुलेशन करना था, दूसरे दिन गैप अप हो गया, तो आपको प्रॉफिट में गया 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, निफ्टी भी ऊपर गया। तो चीजें बताने गई थी कि हमको क्या करना चाहिए, ड्रॉप बेस रैली। जैसे आपको पता चला कि ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग किया, जैसे आपको पता चला ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग किया, जैसे आपको पता चला फॉर्मेशन मिला, क्रूड ऑयल में यहाँ से बाइंग हो गया, क्रूड ऑयल में यहाँ से बाइंग हो गया, तो हमको भी बाइंग साइड में जाना चाहिए। जैसे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल गैस देखो, कल हमारा नेचुरल गैस बाइंग साइड पे आ गया, मतलब सपोर्ट जोन पे आ गया। तो हमको कल एक्शन क्या रहेगा हमारा, नेचुरल गैस में बाइंग साइड। तो डिमांड जोन के फॉर्मेशन के बाद हम जाएंगे सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन में क्या होता है, रैली बेस ड्रॉप। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और वहां से मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर ने क्या किया, प्राइस ऊपर लेके गया है, प्राइस इनबैलेंस हो गया, और उसके बाद रेड कैंडल आ गई। इसका मतलब समझने का कि ऑपरेटर ने यहाँ पे क्या किया, सेलिंग स्टार्ट किया। जैसे ही ये फॉर्मेशन मिलेगा, एक्साइटिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल एंड एक्साइटिंग कैंडल, आवर एक्शन शुड बी सेल साइड। हमको सेल साइड जाना है, हम सेल करेंगे। जैसे आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप, मार्केट नीचे गिर रहा है, प्राइस इनबैलेंस हो गया, उसके बाद रेड कैंडल आ गई, ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे गया। रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये दोनों फॉर्मेशन हमको मिलता है सप्लाई जोन में। So as I told earlier, there is a 42 types of patterns, and many YouTube channels earn huge money by teaching 42 types of patterns, and there is a lot of confusion. Many YouTubers and institute teach indicators, different types of indicators, and very few unique institute teaching the price action, demand and supply zone. So there is only 4 types of pattern: drop based rally, rally based rally, rally based drop, drop based drop. So we buy at downtrend,
We buy at fundamentally weak company. We sell at uptrend. We sell at uptrend. We sell fundamental strong company, and we sell at a supply zone. So this professional buy at demand zone, professional sell at supply zone. Novice buy at supply zone and novice sell at demand zone. So that's why everybody need to understand this strategy, and this is a great strategy and very useful strategy, all of you. So we identify the demand and supply zone, but how to mark exact demand zone? Means single line is not a demand zone. If I draw a single line, it's not a demand zone. I draw a single line, it's not a supply zone. We draw a support and resistance. लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जोन आइडेंटिफाई करना है. ये लाइन ब्रेक किया मतलब ये नहीं होता कि ये रेजिस्ट प्योर पॉइंट ब्रेक किया और अभी प्राइस नीचे आई. बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, बहुत बार फेक ब्रेकआउट होते हैं, वो पहचानना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? जोन मार्क करते हैं. तो जोन मार्क किया तो हमको हमारा फियर और थोड़ा कम होता है. तो जोन मार्किंग के लिए हमारे पास दो लाइन ड्रॉ करना है. एक है प्रॉक्सिमल लाइन और दूसरी रहती है डिस्टल लाइन. So proximal line, which is close to body, and distal line is far away from the body. So how to identify the proximal and distal line? I will show you detail. So I hope everybody understand that price action 4 zones: drop base rally, rally base rally for the demand, rally base drop, and drop base drop in supply. But we will understand how to mark the zones. So rules for the demand and supply placement is that in demand zone, these are the two candles, and if this candle body, so highest body in the basin is our proximal line, and lowest low in the DBR is our distal line. So I will give the tools during the class how to draw proximal line and distal line. I will give all the settings, and I will show how to draw demand and supply zone. So here I will show you how to draw the demand and supply zone. So supply zone, lowest body in basin. बेसिन में जो भी बॉडी नीचे रहेगी वो रहेगी आपकी प्रॉक्सिमल लाइन, और हाईएस्ट बॉडी रहेगी वो रहेगी आपकी डिस्टल लाइन. ये प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन. तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसा मार्क करना है 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा. जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस में मैं क्या करता हूँ? मैं जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मेरे को पहले जोन कहाँ पे मिलेगा? पहला जोन मेरे को यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ. ये मेरा सप्लाई जोन है रिसेंटली, और यहाँ पे मेरे को डिमांड जोन लेना है, तो डिमांड जोन मेरा यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे क्या किया? बॉडी और ये शैडो लिया. तो ये मेरा क्या है? सपोर्ट जोन है, और ऊपर का मेरा क्या है? रेजिस्टेंस जोन है. तो जस्ट मैंने क्या किया कि कैसे आपको डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करना है. बहुत इजी मेथड है, डिफिकल्ट नहीं है. हमारा 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन में आपको ये सब चीजें समझ में आएगी. ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का समझ में आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेगी. और ये कोर्स हम ऑनलाइन मार्केट में भी सीखेंगे, लाइव मार्केट में भी सीखेंगे, लाइव एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ साथ आपको जोन मार्किंग भी कैसे करना है वो आपको डिटेल में समझाऊंगा. तो जोन मार्किंग होने के बाद अभी प्रॉब्लम आता है कि when to be bullish and when to be bearish. So this is the demand zone and this is the supply zone. Any stocks you can select, and I will show you how to mark demand and supply zone. So here HDFC Bank, I want to trade on Monday. I will mark this is the demand zone. Drop base rally formation. So HDFC Bank will bounce here. Where is the supply zone? Drop base drop. This is the supply zone. So when I mark demand and supply zone, so when price moves too far away from the demand zone, it is not a smart to a buyer. प्राइस यहाँ से आ गया, यहाँ पे आ गए, हमको बाय करना पसंद नहीं. एंड व्हेन प्राइस मूव्स टू फार अवे फ्रॉम द सप्लाई जोन, इट इज नॉट अ स्मार्ट टू बाय सेल. प्राइस यहाँ से नीचे 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 गिरती आई, यहाँ पे हमको सेल करना पसंद नहीं आएगा. सो व्हेन टू बी बुलिश एंड व्हेन टू बी बेरिश, वी विल डिसाइड ऑन द कर्व एनालिसिस. सो कर्व एनालिसिस इज वी आर डूइंग ऑन द with the help of the Fibonacci tool. You know that Fibonacci tool, ये 2000 साल पहले इसका ये किया था, और 1200 में लेबर अब फिबोशी ने इसको क्या किया था? ये टूल को इन्वेंट किया था.
और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम ये टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसके लिए यूज किया, कर्व एनालिसिस के लिए। और ऑटोमेटिकली आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क हो गए, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं हमारे पिवोट पॉइंट से भी ज्यादा। जैसे यहाँ पे पिवोट पॉइंट है, तो पिवोट पॉइंट में कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट आता है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे पिवोट आ गया है, यहाँ पे भी पिवोट आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे बाय नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन है, तो आप एचडीएफसी बाय करोगे और आपका एसएल नीचे रहेगा। तो ये जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करने के बाद हमको जो बीच का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन वापस तीन इसमें हमको डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि व्हेन टू बी बुलिश एंड व्हेन टू बी बेरिश वी विल डिसाइड ऑन द कर्व एनालिसिस। तो कर्व एनालिसिस करने के बाद हमारे पास टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं, फिर 5 पार्ट हो जाते हैं। और 5 पार्ट में वेरी हाई ऑफ द कर्व, हाई ऑफ द कर्व, इक्विलिब्रियम, लो ऑफ द कर्व एंड वेरी लो ऑफ द कर्व, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में दिखता है। तो अभी कर्व एनालिसिस करने के बाद और मेरा 45 मिनट आपको एक्सप्लेनेशन करने के बाद अभी आपको क्या लगता है, वुड यू लाइक टू बी बायर हियर, प्राइस इज मूविंग अप 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 एंड दिस इज द सप्लाई जोन, वुड यू लाइक टू बी बायर हियर? आई थिंक नो। आपका अभी आंसर आएगा नहीं। जो आज तक हम करते थे और आज तक हम पैसा लूज करते थे, आज से हम ये नहीं करना करेंगे, हम जरूर ये स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करेंगे। एंड व्हेन प्राइस मूव्स डाउन डाउन डाउन, would you like to be a seller here in demand zone? No, I would like to prepare buyer। मेरे को बाय करना यहाँ पे पसंद आएगा, यहाँ पे मेरे को सेल करना पसंद आएगा। और वही होता है एक्चुअली आवर लाइफ में। कोई भी समझो आईफोन की प्राइस बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, हम बाय करना पसंद नहीं करेंगे। आईफोन की प्राइस नीचे 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 आएगी, जरूर हम बाय करेंगे। और एक्चुअल मार्केट में हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। टीवी पे भी एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको समझता है कि क्या होता है एक्चुअली। सप्लाई जोन आ गया, वो सेलिंग बोलते हैं, और डिमांड जोन में सेलिंग बोलते हैं, और डिमांड जोन में सप्लाई जोन में बाइंग बोलते हैं, डिमांड जोन में सेलिंग बोलते हैं। एग्जैक्ट अपोजिट बोलते हैं। हाँ, कोई एक्सपर्ट ने ऐसा नहीं दिया था कि मार्केट 7,000 पे आया तो बाय करो, और ऐसा बोल रहे थे कि 20,000 पे गया, 18,000 पे गया, तो बोल रहे थे 24,000 पे जाएगा, 25,000 पे जाएगा। वो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। आपको यहाँ पे बाय करने को बोलते हैं और यहाँ पे सेल करने को बोलते हैं। इसलिए आपको किसी का सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है और ट्रेड करना है। अभी हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा कि हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे वर्क होता है, और मार्केट में ऑपरेटर्स रिटेलर को कैसे फंसाते हैं। तो हमको यहाँ पे फंसने का नहीं, यहाँ पे बराबर हम ऑपरेटर की चाल समझ के ऑपरेटर के साथ चले जाते हैं। अभी ये समझने के बाद हमको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है। तो ये वीकली इनकम के लिए यूज कर सकते हो, डेली इनकम के लिए यूज कर सकते हो, आवरली इनकम के लिए यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज पैटर्न ट्रेडिंग। लेकिन कुछ कुछ इसमें सब में स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक नहीं मिलते या पैटर्न मिलते हैं, उसमें आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आवरली इनकम में हम ये स्ट्रैटेजी जरूर यूज करना है, क्योंकि आपको इंडिकेटर्स नहीं यूज करना है कोई भी। तो 3 टाइम फ्रेम यूज करना है यहाँ पे। तो मैं जैसे आपको बताऊंगा, मैं आवरली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि हायर टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड कर्व एनालिसिस आपको किसके ऊपर करना है, हायर टाइम फ्रेम पे, जो हमने मंडे के लिए एचडीएफसी बैंक में किया। कि हायर टाइम फ्रेम क्या रहेगा हमारा, ये अभी इतने आपको जल्दीबाजी में नहीं समझेगा 1-1.5 घंटे में, उसके लिए टाइम लगता है बताने के लिए। यही स्ट्रैटेजी 1 लाख रुपए देके भी मार्केट में लोग बेचते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको दिखाऊंगा क्लास में। कोई पुणे में 30-35,000 भी लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आवरली टाइम फ्रेम में आपने देखा रहेगा कि हम यहाँ पे जोन और कर्व एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने बोला, ये स्ट्रैटेजी हम आवरली टाइम फ्रेम के लिए यूजफुल है, और आप चाहे तो डेली और वीकली के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन आई विल रिकमेंड ऑन आवरली टाइम फ्रेम, और इंट्राडे में ही 90% लोग फेल है। आपको वीकली और मंथली उसके ऊपर भी आपके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन आपको इंट्राडे में सक्सेसफुल बनना है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। सो आवरली इनकम में आपने देखा रहेगा, तो आवरली इनकम में हमको जोन एनालिसिस करना है। तो आवरली का चार्ट लिया और हमने क्या किया, जोन मार्क किया। वापस मैं आपको जोन मार्क करता हूँ। जैसे यहाँ पे बोरिंग कैंडल ज्यादा है, फिर भी मेरे को अभी
एग्जाम्पल दिखाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बोरिंग कैंडल का हाई और इसका लो लिया, ये मेरा डिमांड जोन हो गया। ये जोन में कोई भी कैंडल आगे आना नहीं चाहिए, वो रूल्स मैं आपको क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन है, जैसे बॉडी का लो और शैडो का हाई लिया, और ये हमारा सप्लाई जोन लिया, और इसमें हमने इसको कर्व एनालिसिस कर दिया। कर्व एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये आपको दिखता है कि आपका ट्रेंड क्या है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे आपको देखना है ट्रेंड। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये साइडवेज ट्रेंड है। और वापस हम जाते हैं 5 मिनट पे एंट्री और एग्जिट के लिए। तो मैंने एक्सप्लेन क्या किया कि एक 1 आवर के ऊपर हम मार्क करेंगे जोन एनालिसिस एंड कर्व एनालिसिस, 15 मिनट पे हम देखेंगे ट्रेंड, और 5 मिनट पे वी आइडेंटिफाई द एंट्री एंड एग्जिट, लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब हम जाएंगे और हम देखेंगे कि 15 मिनट पे क्या हो रहा है, तो 15 मिनट पे आपको जाना है और देखना है कि 15 मिनट में हमको एंट्री एचडीएफसी बैंक कहाँ पे दे रहा है। तो 5 मिनट, सॉरी 15 मिनट के बाद 5 मिनट पे जाना है। जैसे ही एचडीएफसी बैंक 1472 क्रॉस करेगा तो ये एचडीएफसी बैंक का टारगेट पहला है 1780, सेकंड टारगेट है 14, सो 1479 ये फर्स्ट टारगेट है, और 1486 मेरा सेकंड टारगेट है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1% नीचे, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1। यहाँ पे मेरा एसएल है, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ये मेरा सेकंड टारगेट है, ये मेरा थर्ड टारगेट। क्लियर? तो प्राइस एक्शन में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू डिमांड जोन और सप्लाई जोन वर्क्स। तो हमने यहाँ पे वही किया, जहाँ पे डाउन ट्रेंड में एचडीएफसी बाय कर रहे हैं, और अप ट्रेंड में हम यहाँ पे जैसी प्राइस आएगी हम सेल करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करता हूँ। क्रूड ऑयल में आपने दिखाया कि मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी बाय किया था, यहाँ पे सेल किया, वापस यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, वापस यहाँ पे बाय किया, और वही सब रिजल्ट्स है। ये डेली बेसिस के ऊपर मैं स्टूडेंट को देता हूँ। जैसे मैंने ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दिया था, और एवरी डे मैं स्टूडेंट के साथ ये मेरा स्टडी एक्सप्लेन करते रहता हूँ, और वही आपको रिजल्ट में आगे स्ट्रैटेजी में बता दूंगा। तो जैसे हमने हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया, जोन एनालिसिस प्लस कर्व एनालिसिस, ट्रेंड देखा, एंट्री एग्जिट लेने के बाद हम देखेंगे मेरी प्राइस कहाँ पे है। जैसे एचडीएफसी बैंक में हमने देखा एक्शन ग्रिड, मेरे एक्शन ग्रिड क्या रहेगी, क्योंकि इसका लैमिनेशन करके रखना है, एक्शन ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो मेरा प्राइस है जैसे ही लो ऑफ द कर्व में, और मेरा ट्रेंड है साइडवेज, तो मेरे को क्या करना है, लॉन्ग करना है, मेरे को बाय करना है, और उसके अकॉर्डिंगली टारगेट टॉप लॉस आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं अभी कल मेरे को एचडीएफसी में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिखूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे को एचडीएफसी क्या करना है, एचडीएफसी आई विल गो ऑन बाय साइड, एचडीएफसी बाय, बाय कहाँ पे करना है, सॉरी यहाँ पे एचडीएफसी लेना है मेरे को, यहाँ पे एचडीएफसी मेरे को बाय करना है कहाँ पे, जैसे आपको बताया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी बाइंग आएगा 1472, टॉप लॉस टारगेट आएगा 79 एंड 86। तो आपको क्या करना है, आज ही स्टडी करके रखना है एचडीएफसी। आप फोटो भी ले सकते हो, और कल देख सकते हो कि क्या हो गया। एचडीएफसी बैंक बाय एट 1472 विथ एसएल 1% का आपको एसएल लगाना है। तो एसएल आएगा 1458 का, और आपका टारगेट आएगा, आप बोलेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है ये, तो आपका टारगेट आएगा 1479, और सेकंड टारगेट आएगा T2 आएगा 1476। अभी लोग देखते हैं कि एजेक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, वहां पे अटैक किया, डाउ फ्यूचर इतना, डाउ परसों 400 पॉइंट गिरा है, तो सब आपका ये वो भी ग्लोबल मार्केट भी कंसिडर करना है, और कल देखना है। जल्दबाजी कुछ नहीं है, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, एचडीएफसी इसके नीचे ओपन होगा तो छोड़ देने का, एचडीएफसी ये लेवल पे है, मार्केट रिकवरी मोड में है, तो यहाँ पे आपको जरूर बाय करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये स्टडी करने के बाद हमको सुबह ग्लोबल मार्केट देखना है, और इंट्राडे में लाइव मार्केट में तो आपको कैसा बाय करना है सेल करना है, वो तो मैं लाइव मार्केट में आपको क्लास में पढ़ा दूंगा, सिखाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
तो एक्शन ग्रिड के हिसाब से आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है वो आपको मैं डिटेल में बता दूं। तो ये बेसिक्स होने के बाद, ये बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड होने के बाद ये प्राइस को बूस्टर कैसा मिलेगा, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक में बोला था कि वहां पे 6-7 मेरे को बोरिंग कैंडल लग रहा है, तो मेरे को वो जोन वीक लग रहा है। तो जोन वीक लग रहा है, इसका मतलब ये जो ब्लू कैंडल है वो कितनी होनी चाहिए, तो 1 से 3 कैंडल रहेगी तो हाई प्रोबेबिलिटी टाइम बूस्टर है, और 4 to 6 कैंडल रहेगी तो मीडियम प्रोबेबिलिटी टाइम बूस्टर है। तो यहाँ पे 1 से 3 कैंडल रहेगी तो बहुत अच्छे है, लेकिन 4 से 6 कैंडल रहेगी तो यहाँ पे थोड़ा डर लगता है कि मीडियम प्रोबेबिलिटी बूस्टर है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। और मोर देन 6 कैंडल रहेगा तो डू नॉट ट्रेड। यहाँ पे 6 कैंडल है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने थोड़ा टाइम लिया है, ऑपरेटर थोड़ा सोच रहे हैं, ऑपरेटर आपस में ही कंफ्यूजन है। ऑपरेटर में 1 से 3 कैंडल में डिसीजन लिया तो ऑपरेटर फॉर्म है कि ये प्राइस ऊपर ही लेके जाएगा। कभी कभी एक कैंडल मिली तो बहुत फास्ट कैंडल ऊपर जाती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा रहेगा एक ही कैंडल में बैंक और निफ्टी में आपको समझ में आ गया कि नहीं यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जैसे यहाँ पे डिस्कशन हो गया, जैसे आपको बैंक निफ्टी में भी पता चला यहाँ पे एक ही कैंडल में ऊपर यहाँ पे बाइंग होगी, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली पता चलता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो ये आपको बूस्टर्स है, बूस्टर में आपको जैसी ब्लू कैंडल आती है वैसे क्लास में ब्लैक कैंडल, ब्लैक जादू भी पढ़ाई जाएगी। ब्लैक कैंडल मतलब एक्सप्लोजिव कैंडल, तो वो भी कैंडल के बारे में हम बात करेंगे विच इज द बूस्टर। और उसके साथ साथ फ्रेशनेस, फ्रेशनेस में वही मैंने बताया कि जो ऑपरेटर्स रहते हैं, ऑपरेटर्स ऑलवेज लाइक टू बाय एट अ डिमांड जोन, क्योंकि उनकी पेंडिंग ऑर्डर्स है। जैसे ऑपरेटर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे मेरे को 50 लाख शेयर बाय करना है, जैसे प्राइस ऊपर जाना चालू हो गया हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। लेकिन बाइंग करने के बाद जैसे ही बाइंग का डिमांड खत्म हो गई, सप्लाई आना चालू हो गया, तो प्राइस नीचे आना चालू होता है। तो नोविश क्या करता है, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल करता है। लेकिन यहाँ पे बाय कौन करता है, फाइनली ऑपरेटर्स ने अपनी ऑर्डर्स लगाई होती है और वेट करता है वो प्राइस डिमांड जोन में आने की। जैसे प्राइस यहाँ पे आ गई, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चालू होगा। इसलिए हमको क्या करना है, डिमांड जोन में ही बाय करना है और यहाँ पे सप्लाई जोन मार करके सेल करना है। आपको कभी भी बीच में बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर्स के ऑर्डर रहते हैं। लेकिन ये जैसे ही आपका क्या होगा, ऑर्डर्स खत्म हो गया तो उसके बाद ये जोन ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए फ्रेशनेस मतलब क्या है, एक बार आपका प्राइस मूव हो गया नीचे आया तो आपको जरूर यहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे भी एंट्री लिया तो भी ठीक है, ड्रॉप बेस रैली यहाँ पे बाय करो, प्राइस ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। तो ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सब कुछ हम कवर करेंगे विद इन 7 डेज। 2 घंटे में सब कुछ कुछ नहीं होता। उसके बाद हमको देखना है कि वॉच लिस्ट, हमको वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। सो एज अ ट्रेडर वी नीड टू क्रिएट अ हाई प्रोबेबिलिटी वॉच लिस्ट, मेक्स स्टॉक्स दैट आर सेफ। वो स्टॉक सेफ भी होना चाहिए और वो स्टॉक में फन आना चाहिए, फन मतलब मुंह आना चाहिए। जैसे पेनी स्टॉक और चीप स्टॉक होता है, जनरली नॉट इंटरेस्टेड बाय द बिग बॉयज, ऑपरेटर्स उसमें ट्रेड नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन 100 to 3000 स्टॉक्स, और उसमें भी हमको स्टॉक डेरिवेटिव में मिल जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। तो मैंने भी कुछ स्कैनर यहाँ पे डेवलप कर किया है प्राइस एक्शन के लिए, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैंने ये लगाया कि एटीआर लगाया, एडीएक्स लगाया। और उसके एडीएक्स मतलब ये क्या इंडिकेटर नहीं है, लेकिन एडीएक्स से आपको बताता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एटीआर बताता है मूवमेंट कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली हमको ये स्टॉक मिले, टाटा कम्युनिकेशन मिला। तो मैं क्या करूंगा, टाटा कम्युनिकेशन ये स्टॉक मेरी स्कैनर से, वो स्कैनर कौन कौन से है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। टाटा कम्युनिकेशन में आपको क्या मिला है, टाटा कम्युनिकेशन में आपको ये सब चीजें मिली है, तो मैंने मार्क करके पहले ही रखा है। मीन्स आपको पढ़ाने के लिए रखा नहीं, मैंने वहां पे ऑलरेडी एनालिसिस किया है कि टाटा कम्युनिकेशन बाइंग साइड में। तो यहाँ पे क्या है, रैली बेस रैली, बीच में कोई भी कैंडल आई नहीं है। वापस मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरा टूल है, ये टूल सेटअप वगैरह क्लास में सब कुछ हो जाएगा, रैली बेस रैली। और इसके बाद आपको सप्लाई जोन मार्क करना है। यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं आएगा क्योंकि ये कैंडल बीच में आती है, यहाँ पे सप्लाई जोन नहीं है, तो सप्लाई जोन मेरा बहुत हाई पे है। ये मेरा सप्लाई जोन, ये मेरा रैली बेस ड्रॉप फॉर्मेशन है, यहाँ से प्राइस नीचे आए। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, इसका कर्व एनालिसिस कर। थोड़ी देर के लिए मैं प्योर पॉइंट्स हाइड करता हूँ, वो यूज भी नहीं करता। उसके बाद मेरे को देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अपना थोड़ा अप साइड में, अप ट्रेंड में। और 5 मिनट्स में एंट्री और एग्जिट है। जैसे प्राइस ये जोन में ओपन होगा टाटा कम्युनिकेशन, आई विल प्रिपेयर टू बाय। जैसे ये ब्रेक मेरा टारगेट रहेगा, ये ब्रेक करेगा तो ये मेरा टारगेट रहेगा।
मैं 5 मिनट्स पे जाऊँ। सो आई होप 70% ट्रेडर्स जो मार्केट में एक्टिव है उनको कुछ ना कुछ समझ में आया रहेगा, और इसमें कुछ ना कुछ है जो हमको बहुत अच्छा पैसा देगा। प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप आपके सपने पूरे कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी सीख के। तो ये टूल सेटअप है, बोरिंग कैंडल कैसा सेट करना है, एक्सप्लोसिव कैंडल कैसा सेट करना है, डिमांड जोन कैसा सेट करना है, पोजीशन साइजिंग टूल कैसा सेट करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर्व एनालिसिस कैसा सेट करना है। तो ये सब टूल्स हम क्लास में डिटेल में सीखेंगे। और डिमांड और सप्लाई जोन अप्लाई करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग व्यू का हेल्प लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में वो बोरिंग कैंडल आपको सेटिंग आती है, तो वो भी सेटिंग करके एनालिसिस कैसा करना है वो हम लाइव मार्केट में भी सीखेंगे, लाइव मार्केट में भी ट्रेड करेंगे। अभी ये बुकिश नॉलेज है क्या? आपको लगता है कि नहीं नहीं ये बुकिश नॉलेज लग रहा है आपको, तो उसके ये रिजल्ट्स है। ये मेरे नेचुरल गैस के ये महीने की कॉल से दो चार स्टूडेंट भी मेरे यहाँ पे ज्वाइन हो गए रहेंगे, उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया रहेगा। ये बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई है। एक भी स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हो गया नेचुरल गैस में। और ये सब एनालिसिस यहाँ पे मैंने मेरा प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप पे यहाँ पे मेरा सब कुछ एनालिसिस वहाँ पे होता है। जैसे ऐसा नहीं कि डेली बेसिस के ऊपर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया, ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम में इक्विटी, निफ्टी, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, देखो जितने फोकस रहेंगे ना उतना आपको अच्छा ये हो सकता है। मेरे को डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गुड। जैसे मैं बोलता हूँ लास्ट 15 साल से एप्पल में, यूएस में एक ट्रेडर है खाली एप्पल में ही ट्रेड करता है, वैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी है लास्ट 16 ईयर से मैं मोस्ट निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी को टच भी नहीं करता। हाँ, मेरे पास दो करोड़ लॉस वाले मैंने स्टूडेंट देखे, दो बैंक निफ्टी में लॉस लेने वाले। लेकिन निफ्टी में मैं लिख के देता हूँ, आप यहाँ पे निफ्टी में भी लॉस नहीं लेंगे, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस भी नहीं लेंगे, और जो स्टॉक में लेंगे आपको कंसिस्टेंटली आपसे प्रॉफिट ही मिलेगा, है ना। ज्यादा अमाउंट डालने की भी जरूरत नहीं, कम से कम अमाउंट डालने के बाद ये सब एनालिसिस और ये सब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और लाइव मार्केट में ये सब कुछ मैं देने की आपको कोशिश करूंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में हम फोकस करते हैं, और ये डेटा हम डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। तो इसके ऊपर आपको जितना भी एनालिसिस है ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही हमारा एनालिसिस है। तो इसके लिए आप देख सकते हो, और डेटा बनाना और मैनिपुलेट करना वो तो यूट्यूबर का काम है, लेकिन हर एक डेटा, हर एक कॉल आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं या यहाँ पे वापस जाके डिमांड सप्लाई डाल सकते हैं और उसके ऊपर ये कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ये ऐसे स्टूडेंट के ये स्क्रीनशॉट भी, जैसे क्रूड ऑयल में, निफ्टी में, वो उतना ही फॉलो करते हैं जितना मैंने बताया, वो ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे ये क्रूड ऑयल का मेरा स्टूडेंट का ही स्क्रीनशॉट है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी हम प्रैक्टिकली देते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। जैसे ये देखो यूएस का क्रूड ऑयल का चार्ट है, क्योंकि वो हम यूएस में ट्रेड करते हैं। जैसे ड्रॉप बेस रैली, यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप है, यहाँ पे बाय करने के लिए बोला है। और ये हमारा नेचुरल गैस। तो आपको जितना ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और निफ्टी के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ। हम बाकी चीजों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। हमको ना मिड कैप निफ्टी करना है, ना सेंसेक्स करना है, या बाकी चीज कुछ कोई भी नहीं करना है। हमारा फोकस सेम है, और वो फोकस से ही हम मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा मतलब हम मंथ एंड में कम से कम हमारा कैपिटल डबल कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ आपके साथ, कोई भी इसमें ये नहीं है या आपको मैनिपुलेट करना है या कुछ भी चीजें गलत बताना, ऐसा नहीं है। आप मेरा सब कुछ एनालिसिस में जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ही है, ये छोड़ के मैं कुछ अलग पढ़ाता आपको पढ़ाने वाले नहीं है। ये स्ट्रैटेजी में देखो निफ्टी, निफ्टी बस वो बंदे उतने ही फोकस रहते, उतने ही फोकस रहते कि हमको क्या करना है, इतना ही करना है, इतना ही करना है। निफ्टी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ठीक है, 8,000 प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपके गले में डाल रहे हैं जो नहीं चल रहा है, जो नहीं हो रहा है। और आपने आजकल जो देखा रहेगा, जो भी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर है वो खुद ही प्रॉफिट में नहीं है, और दूसरों को क्या प्रॉफिट कमा के दे। तो आपका खुद का लर्निंग से आप पैसा कमा सकते हो, दूसरे के लर्निंग से नहीं है। तो जैसे मैंने आपको निफ्टी का, क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का परफॉर्मेंस दिया, स्टॉक ऑप्शन भी मैं देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एनालिसिस करके आप पे ये स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा, और जो भी लॉसेस हो गए स्टॉक मार्केट में आप गारंटेड वो लॉसेस आप रिकवर कर सकते हो। सो एनी क्वेश्चन? हेलो, सॉरी,
आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ में आया रहेगा। और और अभी हमको मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में दिखाता हूँ कि हमको मंडे के कल हमको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कैसा ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने निफ्टी पे बताया वैसा ही मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कल के लिए एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ये जोन में रिमूव करता हूँ और भाई वापस भाई मैं 1 आवर के कैंडल पे जाता हूँ और 1 आवर कैंडल के ऊपर अभी मेरे को यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली रैली बेस रैली फॉर्मेशन है। तो पहले मैं ये जोन मार्क करूंगा और ऑलवेज मैं कौन सा चार्ट लूंगा, डॉलर का चार्ट लूंगा। तो यहाँ पे आएगा रैली बेस रैली फॉर्मेशन, ये मेरा क्या है सपोर्ट। अभी मेरे को रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, सप्लाई जोन ढूंढने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लाई जोन है लेकिन ये कैंडल ने उसको ब्रेक किया है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर का जोन वायलेट किया, जोन एक बार वायलेट किया तो उसको क्या करना है, पकड़ना नहीं है। तो ये मेरा सप्लाई जोन। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप रैली बेस रैली ये मेरा फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद मेरे को करना है कर्व एनालिसिस। कर्व एनालिसिस के लिए मेरे को ये सब टूल सेटअप आप ड्यूरिंग मास्टर क्लास आप जरूर सीखेंगे। और उसके बाद हमको जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा प्राइस जोन डिमांड जोन में है और 5 मिनट में हमारा कल टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा। और वैसा ही तो यूएस ने सीरिया के ऊपर अटैक किया, उसका भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आना तय है। तो ये मेरा डिमांड जोन है। कल क्रूड ऑयल हम बाइंग साइड में जाएंगे और डेफिनेटली हम जैसे 12-1 बजे तक या जैसे लेवल ये हो गया, मैं आपको एक्टिव हो गया ये जोन में आ गया तो आप बाइंग साइड में जाएंगे। वैसा है हमको नेचुरल गैस में देखना है। तो नेचुरल गैस ने ऑलरेडी हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत नजदीक आ गया, इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन है और यहाँ नीचे से रैली बेस्ड रैली। तो मैं क्या करूंगा टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे हूँ। तो नेचुरल गैस में मैं वेट करूंगा। तो कभी कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, कैसा लेना है, बूस्टर कैसा यूज करना है, वो डिटेल हम इसमें सीखेंगे। हम नेचुरल गैस में बाइंग साइड नहीं जाएंगे, हम नेचुरल गैस में सेलिंग साइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम वेट करेंगे कि कल कैसे ओपन होता है। नेचुरल गैस क्रूड ऑयल 2 बजे रात को ओपन होंगे, उसके बाद हमको देखना है कि 9 बजे की फॉर्मेशन कैसा होता है और उसके बाद हम एंट्री एग्जिट लेंगे। सो ये स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया कि स्टॉक ऑप्शंस के लिए, स्टॉक्स के लिए भी यूजफुल है, कमोडिटी के लिए भी यूजफुल है और करेंसी के लिए भी यूजफुल है। ये स्ट्रैटेजी आप हर जगह यूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए आपको यूज करना है ट्रेडिंग व्यू टूल। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट और ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर ये सब टूल आपको सेट करना है। और वो सेट होने के बाद आप डिमांड और सप्लाई जोन से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो लेट्स एनी क्वेश्चंस रुचित? यस सर। सो गाइस एक बार चैट के अंदर बता दीजिए कि जो भी अभी तक सर ने पढ़ाया है, लाइक इज इट क्लियर? अगर क्लियर एक बार चैट के अंदर क्लियर टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो एक बार आप डाउट टाइप कर सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट। मीन्स कम से कम कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया तो आज के लिए मेरा मीन्स ये 1 आवर 1 and 15 मिनट का ये कुछ तो वैल्यूएबल मीन्स आपका टाइम को मैंने ये दिया ऐसा समझ सकता हूँ। क्योंकि आपके इतना संडे दोपहर को आप ज्वाइन किया है और 1 घंटा मैंने आपको बोर किया रहेगा तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक है और इसके ऊपर हम डेली, हम और मेरे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम फोकस्ड निफ्टी नेचुरल एंड क्रूड इतने ऊपर ही हम ज्यादा फोकस्ड है। और उसमें आराम से देखो इस 68,000 पे ही 8,000। और कोई मैंने आपको दिखाने के लिए कोई ऐसा डेटा मैनिपुलेटेड करके वगैरह लाया नहीं है, जो सामने सामने दिखता है वही। ये देखो ये स्टूडेंट ने मेरे को ऑलमोस्ट 50,000 प्रॉफिट बुक किया है निफ्टी ऑप्शंस में। ऐसा नहीं कि कुछ तो डाटा मैनिपुलेट किया है और आपको दिखा रहा हो और आप क्या कर रहे हो, आपको ये कर रहे हो। सिर्फ स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाते हैं, भेजते हैं 1 to 1 यहाँ पे किया है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है, ये कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं है। जो भी रहेगा वो 500 रुपये रहने दो, 1000 रुपये रहने दो। और मैं इंडिकेटर्स के साथ कभी ज्यादा ये नहीं करता, जो भी रहेगा आपको सामने सामने दिखता है। और ये सब प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस डिजाइन बैकवर्ड्स विच आर लॉजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, ओके सर, कंटिन्यू। यस। सो गाइस काफी सारे लोगों के मुझे ऑलरेडी मैसेज आया है कि रोचित हम भी
दत्ता सर के साथ, डीएस सर के साथ ट्रेड करना चाहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनसे सीखना चाहते हैं, तो एक बार मुझे चैट के अंदर बता दीजिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं डीएस सर के साथ ट्रेड करने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके साथ, उनकी कम्युनिटी में, उनकी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में उनके साथ ट्रेड करने में कितने लोग चाहते हैं ऐसा। कि सर की स्ट्रेटेजी तो हमने समझ ली, बट काफी सारे लोगों का डाउट है कि हमें और ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, एंड जब हम सारी चीजें सीख लें तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक हैंड होल्डिंग हमें मिले जहाँ पे हम दत्ता सर के साथ, डीएस सर के साथ ट्रेड भी करें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चैट के अंदर, रोचित यस वी आर इंटरेस्टेड। गाइस अब मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ, या राइट, यहाँ पे डीएस सर कोई कोर्स नहीं बेचने वाले हैं। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ एक कम्युनिटी जिसको ज्वाइन करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। किसी कोर्स में जो मार्केट में आपको कोर्सेज मिलते हैं वर्सेस हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, चैट के अंदर आपको आंसर करना है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे आपको स्विमिंग नहीं आती है, राइट। यू डोंट नो हाउ टू स्विम, स्विमिंग आपको नहीं आती है, स्विमिंग आपको सीखनी है। अब स्विमिंग सीखने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप यूट्यूब पे जाके स्विमिंग की वीडियोस देखो, स्विमिंग के ट्यूटोरियल्स देखो, एंड यूट्यूब पे वीडियोस देख के स्विमिंग सीखने की कोशिश करो। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे आप एक ऐसा मेंटोर ढूंढो जिनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, एंड उनके साथ आप डायरेक्टली पूल में जम कर जाओ, पानी में कूद जाओ और उनकी मेंटरशिप में, उनकी गाइडेंस में स्विमिंग सीख लो। तो आप मुझे बताओ, कभी आपको स्विमिंग सीखनी हो या फिर किसी को रिकमेंड भी करनी हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको वीडियो देख के स्विमिंग सीखनी है, या फिर सेकंड ऑप्शन जहाँ पे आपको एक मेंटर की गाइडेंस में स्विमिंग सीखनी है? एक बार आप बता दीजिए। राइट, एवरीवन इन द चैट इज सेइंग रोचित सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, स्पैम हो चुका है चैट के अंदर सेकंड। क्यों करेंगे? बिकॉज बहुत ही लॉजिकल आंसर है, स्विमिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है। जिसे लगता है कि स्विमिंग थ्योरी में सीख के स्विमर बन जाएंगे, जब आप पानी में उतरोगे तो डूबने वाले हो। बट इसी तरीके की सिमिलर मिस्टेक हमारे इंडियन ट्रेडर्स करते हैं। जब भी कोई मार्केट में आता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो पहली बात तो एंट्री बैरियर नहीं है। आपने अकाउंट ओपन करा, 24 घंटे में आपके पास अकाउंट ओपन हो गया। स्ट्रैटेजी देखने के लिए हम जाते हैं यूट्यूब पे, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और वीडियोस देख के हम ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करते हैं। ये उसी तरीके की बात है कि वीडियोस देख के हम स्विमिंग सीख रहे हैं। बट और इसी वजह से हमारे इंडियन ट्रेडर्स, 99% ट्रेडर्स, से भी खुद कहता है कि 95% ट्रेडर्स लॉस में है। इसी वजह से है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि हाँ रोचित, मैक्सिमम ट्रेडर्स और शायद हमारे भी जो लॉसेस हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि हम वीडियो देख के ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, कि वो यूट्यूबर्स के पेड रिकॉर्डेड कोर्स बाय कर लेते हैं। पेड वीडियो फॉर्म के कोर्सेज के लिए लोग 10,000 20,000 रुपए दे रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है। राइट, एवरीवन इन द चैट इज सेइंग यस रोचित वी कंप्लीटली एग्री। तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए हम यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, हम आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम देने वाले हैं, ऑफर कर रहे हैं, जहां पे आप सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर के आप साथ आप ट्रेड भी करने वाले हो। राइट, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम किस तरीके से हम सीखने वाले हैं, क्या कुछ है मेंटरशिप प्रोग्राम में, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, ओके। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है डीएस सर का मेंटरशिप प्रोग्राम। तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, बहुत ही सिंपल। एक जो डिफरेंशिएटर है कि सब कुछ लाइव है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर बोट कैंप जो आप देख पा रहे हो, दिस इज कि आपको लाइव सेशंस मिलेंगे 7। डीएस सर के साथ अपने 1 घंटा स्पेंड करा है। बूट कैंप के सेशंस 2.5 से 3 घंटे होंगे, तो आप ये समझ लो कि आप 20 घंटे एटलीस्ट सर के साथ स्पेंड करने वाले हो, जहाँ पे डीएस सर आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, सारे टूल्स बताएंगे, एंड सारी टेक्निक्स बताएंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द बूट कैंप। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बूट कैंप, जिससे आपका पैसा बनने वाला है, दैट इज सेकेंड पार्ट। हर महीने आप एटलीस्ट 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने वाले हो। ट्रेड दिलाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएस सर की है। सर खुद ट्रेड फाइंड आउट करेंगे उन स्ट्रेटेजीज पे जो आपने लाइफ सेशन में सीखी है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजीज आपको नहीं पता है, आपको पता है, बट फिर भी इस तरह आपको हैंड होल्डिंग से सिखाएंगे कि 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड आप एटलीस्ट ले पाओ। अगर आप डेली ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, तो 10 से आप 20 भी ले सकते पाओगे, बट मिनिमम हर बंदा जो ऑफिस भी जाता है फिर भी वो 10 तो ले पाएगा। पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स पे ऑफर करी जाती है, राइट। 10 तो आप मिनिमम लेने वाले हो। एंड थर्ड पार्ट ऑफ बूट कैंप विच इज माय फेवरेट, कि देखो ट्रेडिंग सीखना
कोई 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है, टाइम लगता है किसी भी स्किल को सीखने में। आप डॉक्टर बनते हो, 4-5 साल पढ़ाई करते हो, तो एटलीस्ट आपको 1-2 साल का टाइम लगेगा। इसीलिए हम आपसे क्या कर रहे हैं कि हम आपसे हर महीने की हर साल की फीस नहीं लेने वाले हैं। आप हमारी कम्युनिटी को एक बार ज्वाइन करोगे, एक वन टाइम फीस पे करके लाइफ टाइम की मेंटरशिप है, हर महीने 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड, मतलब ट्रेड्स आपको सर प्रोवाइड करते रहेंगे। मतलब इससे होगा क्या कि आपके लॉसेस नहीं होंगे एंड आप प्रॉफिट बनाते रहोगे, राइट। सो गाइस एक बार बता दीजिए चैट के अंदर कितने लोग अब इंटरेस्टेड है इस बूट कैम्प को ज्वाइन करने के लिए, and कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, अगर हम डीएस सर के साथ आएंगे तो वी आर गोइंग टू मेक मनी। कम्युनिटी में कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे वो ट्रेड शेयर करते हैं, ये तो सर ने आपको बता ही दिया है, दिखाई दिया है। एंड सर अभी आपको थोड़ा डिटेल में भी दिखा देंगे किस तरीके से सारी चीजें शेयर होती हैं, किस तरह की कम्युनिटी है। एवरीवन इन द चैट इज सेइंग यस रुचित, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तत्तर डीएस सर के साथ हम ट्रेड भी करना चाहते हैं। एक बार सर आप सिलेबस बता दीजिए कि क्या कुछ हम सीखने वाले हैं लाइव सेशंस में, फिर मैं बाकी की डिटेल्स प्राइसिंग वगैरह रिवील कर दूंगा। ओके, सो ये बुट कैम्प में हम डे वन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड सप्लाई जोन क्यों इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली ट्रेडर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिमांड सप्लाई जोन और अदर फंडामेंटल और टेक्निकल जो करंट यूज करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसमें क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। डे टू में डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे वर्क होता है और क्या कैसे ड्रॉ करना है और उसका इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। डे थ्री में कैंडल स्टिक एंड जोन्स एंड मल्टीपल टाइम जोन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कैंडल स्टिक, जैसे आपको आप बोरिंग कैंडल, मैंने एक्सप्लोजिव कैंडल के बारे में बात नहीं किया, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डे फोर को जोन एनालिसिस एंड कर्व एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस वो मार्क करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में आपको ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। और 6 डे को आपको टूल सेटअप एंड लाइव एग्जाम्पल। और उसके बाद 7 डेज को हमारा डाउट सेशन रहेगा। तो ये 7 डेज में हम डिटेल में हर एक बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा, वो खुद एनालिसिस कर सके। ओके सर। थैंक यू सो मच सर एक्सप्लेन करने के लिए। सो गाइस अब एक बार चैट के अंदर बता दीजिए कितने लोग यस नहीं लिखना है चैट के अंदर, आपको टाइप करना है ज्वाइन। इफ यू इंटरेस्टेड जस्ट टाइप ज्वाइन इन द चैट, JOIN, ताकि मुझे नाम से पता चले कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। जिन लोग लिख रहे हैं मैं एक बार नाम लेता हूँ, योगेश सर, गीता एंड मनजेरा, अनुष्का, मोहम्मद जावेद, समीर, विकास, प्रियंका, सोहम, नितिन, अभिषेक, केपी, वर्षा, रामदास, बहुत सारे लोग ज्वाइन लिख रहे हैं चैट के अंदर। इंटरेस्ट में इतने तो हमारे पास स्लॉट्स भी नहीं है जितना आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो सब लोग इनरोल नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि सबके लिए, क्योंकि हम कम्युनिटी बना रहे हैं राइट, तो छोटी कम्युनिटी है, इतने सारे लोग हम नहीं ले सकते अनफॉर्चुनेटली, बट आई होप आप इनरोल कर पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोगों का एक काफी रीजनेबल डाउट है कि रोजित व्हाट इज द फीस ऑफ दिस बूट कैंप, राइट, कितने पैसे आप चार्ज कर रहे हो। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीएस सर एक फुल टाइम ट्रेडर है एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव आपसे कुछ पैसे कमाने का नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी को बिल्ड करना। अब इस सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी को अगर हम फ्री कर देंगे तो होगा क्या कि जो नॉन सीरियस लोग हैं, जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं या फिर क्विक गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं, वो लोग भी हमारी कम्युनिटी में आ जाएंगे अगर ये फ्री होगी। तो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस क्लास में अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत भीड़ हो जाएगी, आप अनम्यूट करके डाउट्स नहीं पूछ पाओगे। लाइव मार्केट में अगर आपको कोई डाउट आएगा कि सर ये ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है, सर वो नहीं आंसर कर पाएंगे क्योंकि कितनी ज्यादा भीड़ होगी। इसीलिए हम एक वन टाइम फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं एंड ये वन टाइम फीस बहुत ज्यादा मिनिमल है। आप एक बार ट्राई करो गेस करने का फीस कि कितनी फीस होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता दूं, 20 घंटे सर आपके साथ बैठेंगे, 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर लाइफ टाइम प्रोवाइड करेंगे। आप मुझे बताओ कितनी फीस होनी चाहिए, बहुत ही रीजनेबल फीस है, राइट। ओके, बहुत सारे सर बोल रहे हैं 100 रुपए, सर 500 रुपए तो आप मूवी देखने में चले जाते हो 2 घंटे की, यहाँ तो सर आपके 20 घंटे बैठने वाले हैं और आपको लाइफ टाइम के लिए इतने पैसे कमा के देने वाले हैं सर। ठीक है, तो काफी अच्छे डाउट्स पे आ रहे हैं लोग, 3,000 बोल रहे हैं, 5,000 बोल रहे हैं, 10,000 बोल रहे हैं, 15,000 बोल रहे हैं, 10,000 बोल रहे हैं। समीर जी बोल रहे हैं 50,000 रुपये होने चाहिए, 45 से 50,000 रुपए होने चाहिए, 7,000 रुपए होने चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग आप बता रहे हो, विच इज वेरी एक्यूरेट, होनी चाहिए, आई कंप्लीटली गेट इट। बट फिर भी मैं बता दूं यहाँ पे हम अ, हमारा जैसे मैंने बोला था पैसे कमाने का नहीं है, हम प्राइस रख सकते हैं 50,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग इनरोल करेंगे, इतने लोग इंटरेस्टेड है। बट प्राइस हम ऐसा रख रहे हैं कि हर इंसान इनरोल कर पाए जो सीरियस ट्रेडर है।
लॉसेस हुए तब भी आप इनरोल कर पाओगे, अगर आप बिगिनर हो तब भी आप मतलब फीस अफोर्डेबल है, कोई डिसअपॉइंट नहीं होने वाला है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अब जल्दी से फीस भी रिवील कर देता हूँ, एंड आप इनरोल भी कर पाएंगे इस बूट कैम्प में। तो जस्ट, हाँ, तो प्राइस मैं रिवील करने वाला हूँ 3, 2 and 1। प्राइस ऑफ दिस बूट कैंप इज 8,000 रुपीज, बट फॉर फर्स्ट 10 एनरोलमेंट, जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए प्राइस पहले 10 स्लॉट्स के लिए होने वाला है सिर्फ 2,995। आप लोग बता रहे थे ना 50,000 रुपये, 45,000 रुपये, 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, प्राइस ओनली 2,995। 20 घंटे आप सर के साथ सीखोगे, एंड लाइफ टाइम के लिए सर के साथ एटलीस्ट 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड हर महीने। इसी के साथ साथ आपको ये 2 फ्री बुक्स मिलेंगे जिनकी वर्थ 1,000 रुपए। आपको एक ट्रेडर्स किट भी मिलने वाली है। बूट कैंप 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 15 दिन का टाइम रहेगा, तब तक स्टार्ट रहेगा। तो लिंक मैं चैट के अंदर डालने वाला हूँ। इट इज ओनली फॉर फर्स्ट 10 स्लॉट्स। लिंक चैट के अंदर आ चुका है, जल्दी से क्लिक करके इनरोल कर लीजिए, बिकॉज पहले 10 लोग ही इस डिस्काउंट में इनरोल कर पाएंगे, उसके बाद प्राइस 8,000 रुपये होगा। तो मेक श्योर करिए कि आप इनरोल कर लें। एंड जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ, इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आपके कानों तो पहुंच रही है, आई जस्ट वांट टू से कि यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है। इस एग्जैक्ट मोमेंट से आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप डेली 1,000, 2,000, 5,000 के लॉसेस जो आप करते आ रहे हो, वो आप करते रहो। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे आप एक वन टाइम फीस पे करके, वन टाइम जो कि 3,000 रुपए आपके स्टॉप लॉस की एक वैल्यू की फीस पे करके डीएस सर के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सीख सकते हो, एंड उनके साथ लाइफ टाइम के लिए ट्रेड भी कर सकते हो। सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस, राइट। एंड आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, अगर आप इस क्लास के अंदर आए हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, डेफिनेटली तो आप क्लिक करके इनरोल कर सकते हो। लिंक इज अवेलेबल इन द चैट। 3 लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया, लास्ट के 7 स्लॉट बचे हैं, बहुत तेजी से स्लॉट फिल भी हो रहे हैं, काफी लोगों का पेमेंट प्रोसेस में। तो मेक श्योर करिए आप जल्दी से क्लिक करके इनरोल कर लें। टाइमिंग 6 to 8 हो गई हमारी सारी क्लासेस। रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, लाइव टाइम का एक्सेस मिलेगा। 15 नवंबर से क्लास हो रही है, एंड अगर आप बूट कैंप मिस कर देते हो, लाइव क्लासेस नहीं लगा पाते हो, नेक्स्ट बूट कैंप कंप्लीटली फ्री। एक बूट कैंप के आप लाइव क्लास नहीं लगा पाए, शादी आ गई, आपकी जॉब टाइमिंग उस टाइम पे आपको नहीं अलाउ कर पाई, कोई प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट बूट कैंप लगा लीजिएगा। वो भी नहीं अटेंड कर पाए, नेक्स्ट बूट कैंप लगा लीजिएगा। लाइफ टाइम कम्युनिटी है गाइस, राइट। तो लिंक अवेलेबल है चैट के अंदर। एंड सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, एंड एक बार आप हमारी कम्युनिटी को और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग इनरोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनरोल करना भी चाहते हैं। तो इस मामले में अगर आप थोड़ी क्लैरिटी दे पाए, दैट वुड बी ग्रेट। सो बहुत सारे लोगों को यही कोर्स शेर खान ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज फीस लेके पढ़ाता है, और पुणे में भी 30-35 थाउजेंड लेके पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा एक एश्योरेंस रहेगा कि जब तक आपको आता नहीं तब तक ये पढ़ाया जाएगा। जितने भी रुचि के स्टूडेंट ज्वाइन हो गए रहेंगे उनको ये है कि ये कोर्स हम प्राइज एक्शन पढ़ाते नहीं है रेगुलर, इसमें आपको करना रहेगा तो इसके थ्रू ही आप कर सकते हो ज्वाइन। नहीं तो आप बोलेंगे कि ये हम रुचि में हमने एडमिशन लिया था और ये हमको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी इसके थ्रू कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपको ये लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी मिलेंगे, और सर ने जो भी टाइम दिया है, स्लॉट दिया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर एक बार आप कम्युनिटी दिखा पाएं, क्योंकि आप, आई नो आपने दिखाई है, बट एक बार फिर से दिखा पाएं, क्योंकि आप लोगों को पर्सपेक्टिव क्लियर हो चुका है किस तरीके से आप ट्रेड शेयर करते हो, किस तरीके से लोगों को प्रॉफिट होता है, दैट वुड बी ग्रेट। तब तक मैं एक बार इनरोलमेंट से भी कंफर्म कर देता हूँ जितने लोग इनरोल कर रहे हैं। आई थिंक 5 लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया, लास्ट 5 स्लॉट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। तो सर एक बार आप स्क्रीन शेयर करके मतलब अपनी कम्युनिटी दिखा सकते हैं, एंड ताकि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। सो गाइस ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इंटरेक्शन होता है कम्युनिटी में, एंड किस तरीके से प्रॉफिट शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ये इंटरेक्शंस होता है, वहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा, और डिटेल में ये जो भी है, जो एनालिसिस है, सर्विस है, जो भी जोन्स, जो भी प्राइस एक्शन वगैरह है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट शेयरिंग भी करते रहते हैं, ये आपको डिटेल में उसमें मिल जाएगा। यस। तो सर आप डेली ट्रेड शेयर करते हैं? सॉरी। आप डेली ट्रेड शेयर करते हैं, राइट? हाँ, निफ्टी, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये तीनों के ऊपर हमारा ज्यादा रहता है, और इक्विटी में। यस। तो गाइस डेली ट्रेड शेयर होती है, एंड लेट्स से आप डेली ट्रेड नहीं करना चाहते हो, आप नहीं कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोलूँ 10 तो आप एटलीस्ट लेने वाले हो।
राइट। लेट्स से 20 25 दिन मार्केट ओपन रहता है, मार्केट एंड ओपन रहता है, तो आप एटलीस्ट 10 तो ले ही पाओगे फॉर श्योर। एंड तो लिंक अवेलेबल है चैट के अंदर, क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। एंड जितने लोग भी ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो अ, मैं आपको इतना बता दूं कि 1 मिनट में आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड, तो 1 मिनट में आप ट्रेडिंग सीख नहीं सकते। बट नेक्स्ट 1 मिनट में जो आप डिसीजन लेने वाले हो सर के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने का या फिर ना करने का, वो डेफिनेटली डिसाइड करेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या फिर नहीं। तो मेक श्योर करिए कि आप एक अच्छा डिसीजन जरूर लें। एंड अगर आप अपनी लर्निंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप 1 महीने में 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने वाले हो, सर रोज शेयर करते हैं, लेट्स से आप रोज नहीं लेते हो, आप 10 लेते हो, 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड आप लेते हो, पर ट्रेड 4 5 हजार का प्रॉफिट करना, इट्स नॉट अ बिग डील। आप 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके चाल मतलब 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे, 40 से 50 हजार की इनकम आप करने वाले हो। इसी तरीके की इनकम आप हर महीने करने वाले हो, राइट। एंड इसीलिए बेस्ट चीज ये कि यहाँ पे हम आपको कुछ थ्योरी में नहीं सिखा रहे हैं, सारी क्लासेस लाइव होंगी, आप लाइव अटेंड करोगे, डाउट पूछोगे, सारी चीजें आप समझोगे, आपको सर ट्रेड्स भी प्रोवाइड करेंगे। एंड 2 3 महीने बाद मैं बता रहा हूँ, आपको सर की गाइडेंस की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन चुके होगे। एंड जिन्हें टाइम लगेगा उनके लिए लाइफ टाइम की हैंड होल्डिंग है। बेस्ट चीज क्या है कि हम 3 हजार रुपये ले रहे हैं, फीस बहुत ज्यादा कम है। एंड इसके बाद आपसे हम कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे कि 2 महीने हो चुके हैं अब आप और पैसे दो, या फिर हमारा एक और कोर्स है आप ये खरीदो, कुछ भी ऐसा काम नहीं है। कोई अपसेलिंग आपको नहीं करी जाएगी डिफरेंट कोर्स की, कोई मेंटरशिप और कोई आपसे कुछ भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, एंड कुछ भी प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करा जाएगा। दिस इज अ वन टाइम फीस जो आप पे करने वाले हो। लोगों को लग रहा होगा 3 हजार रुपए है तो इसमें कुछ घपला है या फिर कुछ इसमें आगे बेचा जाएगा, कुछ नहीं, वन टाइम फीस है। आई नो कम है, बट आप एनरोल कर सकते हो। आई थिंक लास्ट के 400 यहाँ पे बचे हुए हैं, जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है, कंफर्मेशन चैट्स के अंदर आ चुकी है। एंड गाइज सर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, फील फ्री टू डू इट। एंड फिर हम डाउट्स वगैरह ले सकते हैं, अगर कुछ लोगों के मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड हो या फिर जो भी आपने पढ़ा है। नो सर, कंटिन्यू। यस, सो गाइस अब डाउट्स ले लेते हैं, लिंक अवेलेबल है, आखिरी के 3 स्लॉट्स बचे हुए हैं। किसी का अगर कोई डाउट है रिलेटेड बूट कैंप, रिलेटेड स्ट्रेटजी, या फिर कैसे हम सीखने वाले हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। डीएस सर यहाँ पे हैं एंड आपके सारे डाउट्स आंसर करने के लिए। तो जस्ट रेज योर हैंड और टाइप अनम्यूट इन द चैट, वी विल अनम्यूट यू एंड आंसर ऑल योर डाउट्स। डेली कितनी कॉल्स प्रोवाइड करते हैं सर? सर ये डाउट है। 4 या 5 कॉल आपको आएगी, एक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी की 2 कॉल और इक्विटी की 2 कॉल। Yes. राजदीप सर बोल रहे हैं अनम्यूट मी। राजदीप सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप एक बार अपना माइक ऑन कर सकते हैं, यू कैन आस्क। यस संजय सर, आपका पेमेंट कंफर्म हेलो। है? यस सर। हाँ जी सर, सर ये इस हम लोग यूएस मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं क्या स्ट्रेटजी के साथ, इसको अप्लाई करके? हाँ, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मार्केट में आपका अकाउंट कौन सा है? क्योंकि हम चार्ट तो यूएस की देखते हैं, यहाँ पे चार्ट तो यूएस के देखते हैं, लेकिन हम एमसीएक्स के करते हैं, एमसीएक्स के ऊपर करते हैं। लेकिन आपको यूएस का अकाउंट है और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में करना है, तो आप यूएस मार्केट में भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसे यूएस ऑप्शन, यूएस स्टॉक्स में भी तो कर सकते हैं ना? यूएस स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग आपको अलाउड है कि वहां पे वो चेक कर सकते हैं ओके, थैंक यू। कमोडिटी में। ओके, यस सर, सी यू इन द बूट कैंप, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। गाइस किसी और का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट के लिए बोल दीजिए। सर मैं कल ज्वाइन करूंगा। गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे पास सीट्स काफी कम है, 10 स्लॉट्स ही आज हम ले रहे हैं। तो आफ्टर क्लास एनरोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज प्राइस आई नो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अभी सीट्स अगर फुल हो जाती हैं, 10 हैं जिसमें से 3 बाकी हैं, 7 लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो अगर ये सीट्स फुल हो जाएंगी, कल कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास आफ्टर क्लास एनरोल करने का। एंड हम यहाँ पे भीड़ नहीं ले रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं चाहते, वी डोंट नीड क्राउड, वी नीड सीरियस पीपल जो कम्युनिटी के अंदर ट्रेड लेंगे एंड सीरियसली सीखना चाहते हैं, राइट। इसीलिए हमने स्लॉट्स काफी कम रखे हैं। इसका फायदा आप ही लोगों को होने वाला है जो लोग इनरोल कर रहे हैं। क्या फायदा होगा कि जब हमारे लाइव सेशंस होंगे तो उसमें 100 200 लोग नहीं बैठे होंगे, उसमें 20 लोग बैठे होंगे। तो हर टॉपिक के बाद आप अनम्यूट करके पूछोगे सर से कि सर यहाँ पे हमें ये नहीं समझ पाया, सर यहाँ पे ये कैसे करते हैं, तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर होगा।
रिकॉर्डेड कोर्सेज में यही प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने बता दिया, आपको कोई डाउट सुनने के लिए नहीं है। लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट सुने जाएंगे। उसके बाद हमारी जो प्रीमियम कम्युनिटी होगी उसमें भी 20-25 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। आप आओगे, आप डाउट पूछोगे एंड आप सर के साथ ट्रेड लोगे। सर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल इशू है, कोई भी इशू है, सर का पर्सनल नंबर आपके पास होगा, आप सर को मैसेज करो, आप सर को कॉल करो। एज ए सेड, दिस इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, तो हर चीज एज अ मेंटर डीएस सर अवेलेबल रहेंगे आपके साथ। कोई कोर्स नहीं है जहाँ पे आपको बेच दिया उसके बाद कोई कनेक्ट नहीं है, और राइट। जो भी बंदे देहरादून से है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर बैच, उनको ये कोर्स पढ़ाने के हमने कमिटमेंट की थी, उनको ये पढ़ाया जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं कि उनको पे करना है यहाँ पे, वो आप किसी ने ज्वाइन किया रहेगा जून जुलाई अगस्त अक्टूबर से हमने 2 अलग अलग कोर्स किए थे। लेकिन पहले कोर्स का जो कमिटमेंट है वो अपना प्रीमियम ग्रुप के आपको कॉल कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ओके, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको यहाँ पे हम ज्वाइन किया, ये नॉलेज नहीं मिलेगा। वो जो हमारा सत्संग होता है वहां पे आपको वो नॉलेज मिल सकता है, उसका ही नहीं। लेकिन जो अक्टूबर से ज्वाइन हो गए वो सिलेबस में नहीं है हमारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जून जुलाई अगस्त बंदे वो जो हमने कमिट किया था उसके ऊपर हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, आपके साथ वो जो ग्रुप है आपका हमारे ग्रुप में डाले जाएंगे। लेकिन जो अक्टूबर से चालू होगा वहां से हमारा ये डिसकंटिन्यू किया है और हम फ्यूचर अकेडमी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है सर। यस। सो गाइस, मैं एक बार एनरोलमेंट काउंटर शो कर देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एनरोल कर लिया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितने लोगों ने एनरोल करा है इस बूट कैम्प के अंदर। एंड जिन लोगों ने एनरोल करा है, कंफर्मेशन के लिए भी उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक मैं आपके साथ एनरोलमेंट काउंटर शेयर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एनरोलमेंट काउंटर ओपन कर रहा हूँ। जिन लोगों ने एनरोल करा है सबका नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो एज यू कैन सी, टोटल हमारे पास 10 स्लॉट्स है, जिसमें से 7 स्लॉट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो गणेश सर, संजय, प्रफुल्ल एंड शाबीर, योगेश एंड दिलीप सर, आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है। वेलकम टू बूट कैम्प। एंड गाइस, स्टिल अगर किसी का डाउट है, आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर इज हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स। एंड जिन लोगों का नाम यहाँ पे है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट कंफर्म है। एंड वेलकम टू बूट कैम्प। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या कुछ है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप 7 लाइव क्लासेस में बैठोगे, लगभग 20 घंटे आप सर के साथ स्पेंड करने वाले हो लाइव क्लासेस में, जहाँ पे सिर्फ उस क्लास में 20 लोग होंगे। तो अनम्यूट करके डाउट्स पूछोगे, लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट बूट कैम्प का एक्सेस कंप्लीटली फ्री। 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड हर महीने एटलीस्ट आप लेने वाले हो, एटलीस्ट। आप 20 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो, बट हर इंसान एटलीस्ट 10 तो लेने वाला है। लाइफ टाइम कम्युनिटी है, मतलब उसके बाद आपको कुछ एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। हर महीने आप 10-10 प्रॉफिटेबल ट्रेड सर के साथ लेने वाले हैं। तो दिस इज द मेंटरशिप प्रोग्राम, लिंक अवेलेबल है चैट के अंदर, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर किसी को ईएमआई से एनरोल करना है, मतलब अगर कोई फुल प्राइस नहीं पे कर पा रहा है, किसी को ईएमआई से एनरोल करना है, एक बार आप मुझे बता दीजिए, आप ईएमआई से भी एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको ईएमआई से एनरोल करने का ऑप्शन दे दूंगा, जहाँ पे आपको पार्ट पेमेंट अभी करना है, रिमेनिंग पेमेंट आप बूट कैंप स्टार्ट होने के बाद कर सकते हैं, 1-2 क्लासेस लगाने के बाद कर सकते हैं। इफ यू इंटरेस्टेड इन ईएमआई, जस्ट टाइप ईएमआई इन द चैट, मैं आपको ईएमआई से एनरोल करने का ऑप्शन भी दे देता हूँ। हाउ ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, हाउ मेनी मंथ्स? सर गाइस, सर लाइफ टाइम है। हर महीने आप इस कम्युनिटी के अंदर रहोगे, सर आपके साथ शेयर करेंगे हर महीने। मतलब देखो, सर खुद तो ट्रेड करते ही हैं। मतलब सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर है, सर एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सर जो खुद ट्रेड लेते हैं, बस वही ट्रेड्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, राइट। तो आप इनरोल कर सकते हैं। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं कि यस रोचित, वी आर इंटरेस्टेड इन ईएमआई, हम ईएमआई से इनरोल करना चाहते हैं। तो फिर मैं आपको ईएमआई से इनरोल करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दे देता हूँ। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ 999 रुपीज पे करना है। रिमेनिंग अमाउंट आप बूट कैंप स्टार्ट होने के बाद पे कर सकते हो। एंड आपसे कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करा जाएगा, आपको सेम बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, राइट। तो ईएमआई का लिंक मैंने चैट के अंदर डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन बेस्ट है, बिकॉज 999 रुपीज कुछ नहीं होते। आप लोगों का स्टॉप लॉस भी 2-3 हजार रुपए का होगा। तो सिंपली बहुत ही क्लेवर तरीका है एनरोल करने का बूट कैम्प में। आप 1-2 क्लासेस लगाइए, उसके बाद आप बाकी का रिमेनिंग पेमेंट कर सकते हैं। एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के बाद भी कर सकते हो। तो लाइक यू कैन रिकवर द मनी एंड देन यू कैन पे द मनी, पे द फीस। तो गाइस, स्टिल अगर किसी का डाउट है सर से, तो वो आप एक बार पूछ लीजिए। बिकॉज अगर नहीं है तो सेशन इज ऑलमोस्ट एंडेड। तो जैसे ही 3 स्लॉट्स फिल होंगे, मैं भी क्लास एंड करने वाला हूँ।
तो उससे पहले अगर किसी को डाउट है आप पूछ लीजिए। एंड दिस इज अ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये क्लास खत्म हो जाती है, आप एनरोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद शायद आपको कभी ऑप्शन ना मिले डीएस सर के साथ ट्रेड करने का एंड उनके साथ सीखने का। एंड बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अगर उचित हम इनरोल नहीं करते हैं, तो शायद हम 1,000 रुपये बचा लें, 3,000 रुपये बचा लें। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में सीखने की फीस आपको देनी पड़ेगी। तो आप दो जगह फीस दे सकते हो, या तो आप डीएस सर को 3,000 रुपये दे के आप एनरोल कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप मार्केट को फीस दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ लॉस। जो आपके 1,000, 2,000, 5,000 के लॉस होता है, वो लॉस नहीं है, वो आप मार्केट को फीस दे रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट फीस लाखों में लेता है और वो बहुत पेनफुल होती है। सर की फीस बस 3,000 रुपये है एंड बहुत ही अच्छे से आप प्रॉफिटेबली सीखने भी वाले हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट, तभी आज आप इस क्लास के अंदर आए हो। तो आई होप यू आर टू सी इन द boot camp. Okay, thank you, sir. Thank you for your support. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Jyotai sir. Thank you so much for Thank you. joining. And जैसे लोग इनरोल कर लेंगे, I will add them in community and हम फिर उनके साथ इंटरेक्शन शुरू करेंगे। Thank you so much for joining and see you in the boot camp, sir. मुझे भी काफी Thank अच्छा you. लगा attend करके संडे के दिन। Yes, sir. Thank you. Bye. So guys, सर ने लीव कर दिया, बट यहाँ पे मैं नेक्स्ट 5-6 मिनट्स रहने वाला हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास आई थिंक कुछ लोग इनरोल कर रहे हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। जैसे इनरोलमेंट्स आ जाएंगे, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास एंड फिर हम व्हाट इज द किट, मैं आपको किट बता देता हूँ किट के अंदर क्या है। जस्ट अगर यहाँ पे एडेड है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, किट के अंदर वी हैव बुक्स एंड वी हैव कोर्सेज वर्थ 30,000 रुपीज। 30,000 के बूट कैंप्स है हमारे पास। जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो हम आपको फ्री दे रहे हैं, मतलब उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ई बुक्स हैं एंड देन वी हैव बूट कैंप्स। जो हमारा एक है निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का है, बाय मिस्टर मनीष सचदेव, जो भी एक टीचर है द फ्यूचर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका बूट कैंप है। हेमंत सर का स्विंग ट्रेडिंग बूट कैंप है। एंड हमारे पास एक मल्टी बैग इन इन्वेस्टिंग का भी बूट कैंप है। 3 बूट कैंप कम्प्लीटली फ्री मिलेंगे। सो गाइस, ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू एंड दिस क्लास। 999 रुपीज। यस, जैसे आप लोग एनरोल कर लेते हैं, मैं आपको एक कंफर्मेशन दे दूंगा एंड देन सी यू ऑल। ओके, तो ईएमआई कंफर्म हो चुकी है। सुधेंद्र सर, आपकी ईएमआई कंफर्म हो चुकी है। वेलकम टू बूट कैंप। यहाँ पे कुछ लोगों की फेल हो रही है। उत्तम दत्ता चौधरी सर, आपकी फेल हुई है। शबीर शेख सर, आपकी ईएमआई फेल हुई है। एंड मंजू शर्मा मैम, आपकी ईएमआई फेल हुई है। तो मेक श्योर करिए कि आप फिर से लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज एक बार अगर मैंने आप ये क्लास एंड कर दी, उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सर, पेमेंट करने के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? पेमेंट जैसे आप करेंगे, आपको एक ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद कोई भी आपको सारी चीजें उसी में प्रोवाइड करेगी। सुधे सुधेंद्र सर, आपका पेमेंट कंफर्म है। वेलकम टू बूट कैंप। सो गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट्स, जो लोग यहाँ पे अभी हैं, प्रवीण, अनुष्का, सुमित, समीर, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द चैट। आप बता सकते हो तो मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। मिस्टर समीर, अर्श, कुंती, संजय सर, मोहम्मद, जावेद, अर्चना मैम एंड बसंत सर, सुधेंद्र सर, आपका पेमेंट कंफर्म है। वेलकम टू द बूट कैंप। एंड गाइस, किसी का भी कोई डाउट है, एक बार आप पूछ सकते हैं। अच्छा, शबीर ठीक बोले, आई हैव ऑलरेडी पेड। अच्छा सर, आई थिंक आपने फुल, मैं एक बार देख सकता हूँ। सेकंड। ओके, सो गाइस, हाउ टू कांटेक्ट यू गाइस, मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड। अभी चैट में टीएफयू सपोर्ट, इफ यू आर हियर, आप एक बार सपोर्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, जो बूट कैम्प मैनेजर है उनका। सो गाइस, वी हैव स्टिल 37 पार्टिसिपेंट्स। तो अभी आखिरी के 2 स्लॉट्स बचे हैं। मैं एक बार इनरोलमेंट काउंटर दिखा देता हूँ। सुधीत्र सर, आपका कंफर्म हो चुका है। उत्तम दत्ता चौधरी सर, आपका पेमेंट भी कंफर्म है। वेलकम टू बूट कैंप। ओके, सो गाइस, अभी आखिरी का एक स्लॉट बचा है। ओके, सो गाइस, अभी आखिरी का एक स्लॉट बचा है। जैसे ही स्लॉट फिल हो जाएगा, आई विल एंड दिस क्लास। तो लेट्स सी कौन लकी इंसान है जो इस बूट कैंप का लास्ट स्लॉट फिल करता है एंड वो इनरोल्स इन दिस बूट कैंप। एंड क्योंकि जैसे ही वो हो जाएगा, मैं भी एंड कर दूंगा एंड उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एनरोल करने का।
मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, इनफैक्ट जिन लोगों ने पे करा है सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो गाइज आप नाम देख सकते हो अपना अपना जिन लोगों ने एनरोल करा है। ओके, कुछ डाउट्स आई हैं, पेमेंट कर रहा हूँ। ग्रेट सर, आप कर सकते हैं। लास्ट स्लॉट रिमेनिंग, सपोर्ट नंबर डाल दिए टीएफयू सपोर्ट ने। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। टिल स्टार्ट क्लास एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम योर मैम, आप एनरोल कर लेंगे, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे एंड वी विल गिव यू जो टीएफयू गुडीज हैं। आपको 30,000 के बूट कैंप्स फ्री मिल जाएंगे, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। 15 से हमारा बूट कैंप स्टार्ट रहने वाला है, सर ऐड हो जाएंगे, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं एंड उसके बाद 15 से हमारी क्लास होने वाली है। काइंडली एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट आर द अवेलेबल इन किट। सो गाइस, दो चीजें मिलने वाली हैं आपको। ई बुक्स मिलने वाली, वी हैव ई बुक डिपॉजिटरीज जिसमें अराउंड 100 बुक्स हैं, राइट, अराउंड 100 बुक्स वो आपको मिलेंगी। सेकेंडली यू विल गेट boot camps worth 30,000 rupees. So guys, last one slot remaining, जल्दी से आप पे कर सकते हो। सर गिफ्ट्स किसके लिए? सर गिफ्ट जो लोग इनरोल कर रहे हैं उन्हीं के लिए। ओके, पेमेंट डन। यस, वैभव सर आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है। अनंत सर आपका पेमेंट भी कंफर्म है। सुदेन सर आपका भी ऑलरेडी कंफर्म है। उत्तम दत्ता आपका भी कंफर्म है। वेलकम टू द बूट कैम्प गाइस। सो नाउ आई एम गोइंग टू, यस गाइस आपका पेमेंट कंफर्म है। वेलकम टू बूट कैम्प। And now I'm going to end this class. Thank you so much for joining. एक बार मैं लिंक डाल देता हूँ and I'm going to leave this class for another 5 minutes. तब तक आप एनरोल कर सकते हैं बिकॉज जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू ऑल इन द बूट कैंप। लिंक इज अवेलेबल, आप कर सकते हो। नेक्स्ट 5 मिनट्स का मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली क्लास एंड हो जाएगी। इन 5 मिनट्स के अंदर जो भी एनरोल करेगा आई विल गिव द कंफर्मेशन। एंड अनंता सर एंड आरओ सर आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है। वेलकम टू बूट कैंप।